तो जनाब, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया या यूज नहीं किया, आज हम, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट मोहम्मद हबीब ने कल मैसेज किया कि इज मॉड्यूल 2 टॉट बाय सर और इट विल बी टॉट आफ्टर मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 2 जो है दैट इज अबाउट द बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। तो आज भी हम अपने इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री में तो हमें डेफिनेटली इन्हीं, अगर स्विचेस के साथ काम करना है तो हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी इस पे काम करना आना चाहिए। तो here is for you, those who have joined the class for maybe uh, they are new to the class, especially Ikra. So I have sent you this link, and if you click this link, you will enter into the here, which is called as the resource hub. But for this to enter, you need a login. So there is no issue. You already have a login. So, for example, if in my case, I will give my email address here. I will enter my email address here, and I will say login. And when it asks me the password, which you have already, the password you already have, so you should log in here. And then, ladies and gentlemen, you will get here the resource आप logged, आप लॉग इन इस पे कर गए हैं। अब अगर आप डाउन मूव करें तो आपको नजर आएगा कि here we have three different versions of the Cisco packet tracer. Ladies and gentlemen, now you have to check yourself whether your machine is a Mac machine or your machine is a Linux machine. It means Ubuntu machine, or your machine is a Windows machine. So whatever the machine you have, you should click it. For example, my machine is Windows machine, so I will be interested to download this one. Okay. So just you have to click it and it will start downloading. It will start, you can see here. You can see here, okay, it is asking you whether you want to open it or you want to save as, or you can save it. So you should save it on your computer and then double click it because it is nothing but an executable file. Furthermore, if you want to learn about its uh, installation, here is the here is the here is the file. Again, I am showing you here कि यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, Cisco Packet Tracer डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन। ये बता रहा है कि इसके लिए क्या इंस्ट्रक्ट, क्या अगर आप, क्या होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है। यू शुड हैव एटलीस्ट विंडो 10 और 11। If you are on a Mac, you should have a 10.14 or newer. If you are on a Ubuntu, you should have a 20.04 or 22.04 LTS operating system. You should have at least 4 GB of free RAM, and you need approximately more than 1 GB of free space on your SSD or HDD. So here is, ladies and gentlemen, if you click this, so you are here, and it is a good document because it tells you how to download the Cisco packet tracer. तो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया कि जी, फॉर डाउनलोडिंग यू शुड गो ऑन दिस site, this URL, and download as per your requirement, whether you are on a Windows machine or a Linux machine or on a Mac machine. And when you download it, then here comes the how you will install it. Very simple. But for this, it is important again, whether you are on a Windows machine, then you will be using these steps. If you are on a Linux machine, definitely you will be using the CLI, and you will be giving the command, this one, sudo apt-get install Cisco packet tracer, wherever you have placed it. And if you are on a Mac machine, you have to use these few steps to install it. तो इसके वीडियोस में भी ऑलरेडी हमने ये दिया हुआ है। तो अगर इकरा आपके पास ये नहीं है तो कोशिश करें कि वीकेंड तो खत्म हो रहा है, जैसे आखिरी वीकेंड के पोर्शन में आप इसको डाउनलोड भी करें। यू विल गेट ए लाइसेंस वर्जन ऑफ द पैकेट ट्रेसर, नंबर वन, एंड नंबर टू, इंस्टॉल। और कुछ यूज अभी हम इसको करना चाहते हैं। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी मूव फर्दर, और ये बता रहा है
कि पैकेट ट्रेसर इज नॉट अवेलेबल फॉर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। इसका मतलब यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑन योर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। होपफुली देयर इज नॉट एन इशू। ओके नाइस। तो जनाब अब हम बात करना चाहते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया। अब इंस्टॉल किया तो मेरे पास ये नजर आ गया, ओपन हो गया। क्योंकि आप सब लोगों ने ये कि कुछ ने मेरे साथ यूज किया हुआ है, कुछ ने पहले से यूज किया हुआ है, विच इज नाइस। अब हमारा मसला ये है कि हम आज की क्लास में थ्योरी के साथ साथ इस प्रैक्टिकल वर्क पे काम करना चाहते हैं। इसमें क्या क्या करना चाहते हैं? नंबर वन, हम ये करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम, आप देख रहे हैं कि अगर इसमें मैं रखूं तो इस नीचे मुझे नजर आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। तो मैंने इस नेटवर्क डिवाइसेस को क्लिक किया तो मुझे डिफरेंट राउटर्स, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस वगैरह नजर आ रहे हैं। बट इन विच डिवाइस आई एम इंटरेस्टेड? आई एम इंटरेस्टेड इन द स्विच। So, ladies and gentlemen, I click the switch and I get different switches, layer 2 and layer 3 switches available for me. Ladies and gentlemen, इसमें अगर मैं इसको क्लिक करूं 2960 को और इसको ड्रैग करके इस कैनवस पे ड्रॉप कर दूं, तो आई हैव दिस 2960 switch available for need for simulation, for testing, for learning. अब यहां पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहां पर भी आपको दिखाऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, stop it and show you here. So, ladies and gentlemen, you can see here that this is the same switch which is on your screen, which is on your screen. If you can read it a little bit, probably, so you can see here it is written Catalyst 2960 plus series switch. तो स्पेशली जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट फिजिकल जो है वो भी, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो अपने रिज्यूमे में ऐड करें कि एटलीस्ट दे हैव यूज दी सिस्को 29 कैटलिस्ट, कैटलिस्ट 2960 स्विच, कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच। अब अगर ये स्विच है तो आपको पता है कि स्विच को मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूं, इसका कोई कीबोर्ड नहीं, कोई माउस नहीं, कोई स्क्रीन नहीं है। तो फिर कैसे मैं स्विच के साथ कनेक्ट हूं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जवाब देंगी इकरा? कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई माउस नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है। तो फिर मैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर करूं? इज देयर एनी वे टू कॉन्फ़िगर दिस स्विच व्हिच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, व्हिच आर द डेटा पोर्ट्स व्हिच इज विजिबल टू यू? डू यू हैव एनी आंसर? आमिना, सवेरा, इकरा, तीनों में से कौन जवाब देगा? इवन फेहाम, चारों में से कोई भी जवाब दे दे। शाबाश। एंड आंसर इज फ्रॉम इकरा। सर लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करें जी। तो मुख्तलिफ जवाबात हमारे पास आ गए कि जनाब हमें कहा, इकरा ने कहा कि लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करने, देन टर्मिनल से टू कंसोल कॉन्फ़िगर का होगा। ठीक है, आपने कहा कि लैपटॉप कनेक्ट करो इसके साथ या डेस्कटॉप कनेक्ट करो, लेकिन रिशवान ने उसका आगे जवाब दिया कि जनाब इसके लिए आपको एक स्पेशल केबल चाहिए होगी, जिसको कहते हैं रोल ओवर केबल या कंसोल केबल। इसका मतलब है कि कमर अहमद ने भी कहा कि सर इसके लिए आपको कंसोल केबल चाहिए होगी, और आपके स्विच के ऊपर भी एक स्पेशल पोर्ट है जिसको कहते हैं, ये देख लें, जिसको कहते हैं कंसोल पोर्ट। तो आपके स्विच में भी कंसोल पोर्ट, और आपको वो स्पेशल केबल चाहिए, और स्पेशल केबल का नाम है ये, जिसका एक एंड RJ45 है, एक एंड RJ45 है, और दूसरा एंड सीरियल है। ठीक है अहमद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थ्रू कंसोल केबल। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि एक तरफ तो मेरा कोई इशू नहीं है, कंसोल केबल में RJ45 का कनेक्टर लगता है, इट विल बी, इट कैन वर्क फॉर मी। लेकिन दूसरा एंड जो है वो इसका
सीरियल है, RJ45, सॉरी RS232 है। तो इसके लिए एक कन्वर्टर चाहिए मुझे एक कन्वर्टर चाहिए जिसका एक एंड जो है वो सीरियल है और दूसरा एंड जो है वो यूएसबी है। तो मैं सीरियल को सीरियल से आपस में कनेक्ट कर देता हूं मैं सीरियल को सीरियल से आपस में कनेक्ट कर देता हूं, और अब इस केबल का एक एंड जो है वो RJ45 हो गया और दूसरा एंड जो है वो यूएसबी हो गया। तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा एक और चीज जो सवेरा ने नहीं बताई, फिहान ने भी नहीं बताई, वो ये है कि मुझे अपने डिवाइस पे कोई टर्मिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। मुझे अपने लैपटॉप पे कोई टर्मिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, और उसका नाम हमें मुख्तलिफ स्टूडेंट ने बताया कि वो है पुटी। वो है पुटी। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट ने हमें उसका जवाब दिया कि यू शुड इंस्टॉल पुटी ऑन योर कंप्यूटर। तो क्योंकि मैंने पुटी पहले से, पुटी अगेन, कहां से पुटी आए? तो वेरी सिंपल आंसर इज कि जी यू शुड गो टू दी putty.org। पुटी डॉट या पुटी डाउनलोड, और ये आ गया पुटी डाउनलोड। तो आप पुटी को, और यहां पे भी आपने देखना है कि वेदर यू वांट टू इंस्टॉल इट फॉर ए विंडो मशीन विच इज 32 बिट और 64 बिट। तो मोस्टली आजकल आपके तमाम लोगों के जो कंप्यूटर हैं, दे आर लैपटॉप जो है वो 64 बिट हैं। ये भी देखना होगा कि आपकी जो प्रोसेसर है वो इंटेल बेस्ड है या AMD बेस्ड है। तो क्योंकि आजकल ज्यादातर डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, इवन आप यूनिक्स पे हो, तो हेयर इज दी जिप फाइल, आर्काइव फाइल। लेकिन मोस्टली वी आर यूजिंग दी विंडोज, सो आई विल बी डाउनलोडिंग दिस ऑन माई कंप्यूटर एंड देन जस्ट क्लिकिंग एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड। फिर भी हमने हमारे वीडियोस में ये है, फिर भी किसी को कोई मसला हो तो इजीली आप पूछ सकते हैं। विद इन 5 to 5 मिनट्स में ये एक्सप्लेनेबल टास्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि अगर मुझे इसको यूज करना है तो हाउ आई विल बी यूजिंग। लाजमी तौर पे आई नीड टू गिव पावर टू माय कंप्यूटर, माय लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप को ऑलरेडी पावर है, स्विच को। तो स्विच को हम पावर देंगे। ये देख लें लेडीज एंड जेंटलमैन, कहाँ गया हमारे स्टूडेंट्स? जी, ये हमारा स्विच है। इस स्विच को हम पावर देते हैं। ये हमने इसको क्योंकि एक्टिव डिवाइस है, ये हमने इसको पावर दी एक तरफ, ये हमने पावर लगा दी, और दूसरा हम इसको कंसोल पोर्ट के ऊपर जो केबल थी वो हमने लगा दी। ये हमने कंसोल केबल लगा दी, और इसका दूसरा एंड जो है वो हम लगा देंगे अपने लैपटॉप। अब और पावर दे देंगे स्विच को, स्विच बूट कर जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्विच पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS। आप पहले से इस पे जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को, पुटी सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। ये देख लें जी, मैं यहां लिखूंगा पुटी, और ये पुटी क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है, शायद मैंने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी है, PUTTY, तो इसको मैं कर दूंगा ओपन। और ओपन करने के बाद क्योंकि मैं सीरियल पोर्ट से इन होना चाहता हूं तो मैं सीरियल पोर्ट पे जाऊंगा। तो ये मुझे देखिए कम्युनिकेशन पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट बता रहा है। और मैं यहाँ पे कहा गया, ये है जी। मुझे ये देखना होगा कि मैं किस पोर्ट के ऊपर हूँ। यहाँ तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट कॉम पोर्ट 1 दे रहा है, लेकिन असद, उमर, इकरा, सवेरा, आमिना, मुझे चेक करना होगा वाकई में कॉम पोर्ट 1 पे हूँ, क्योंकि अभी तो कनेक्ट नहीं है ना, इसलिए। क्या आपको अच्छा, ठीक है जी। तो आपको ये नजर आ रहा है कि कॉम्पोर्ट 1, मैं दोबारा दिखा देता हूं क्योंकि आपको नजर नहीं आया होगा। तो ये मैंने पहले पुटी लिखा, और पुटी को मैंने ओपन किया। तो ये मुझे कह रहा है किसके जरिए कनेक्ट होना चाहते हो? एसएसएच के जरिए, सीरियल के जरिए, या फॉर एग्जांपल टेलनेट के जरिए। तो मैंने कहा जी लाजमी तौर पे हमारी मेरी जो पोर्ट है, मेरी जो कंसोल पोर्ट का है, कंसोल केबल है, वो तो सीरियल है। तो ये इसने कहा जी ठीक है। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं वाकई क्या कॉम पोर्ट 1 पे हूँ। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन,
3 क्वेश्चंस आ गए। क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है? जी। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब मैं जाऊंगा डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर को जाके ओपन करके और कम्युनिकेशन पोर्ट को चेक करूंगा, जो कि अभी नहीं नजर आएगी क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके पोर्ट्स, ये देखें जी, पोर्ट्स में जाकर यहां से चेक करूंगा कि किस पोर्ट के जरिए मैं कनेक्टेड। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसे ही लगा दें बगैर कनेक्टिविटी के, तो फिर क्या ये शो करता है? जस्ट फॉर मजे के लिए देखते हैं। लेकिन ये काम मुझे करना किस पे है? सिमुलेशन पे। तो इसको हम लगाता हूं, तो आप देखेंगे कि अभी यूं ही देखे मैंने लगाया, और ये नजर आ गया कि कॉम पोर्ट किस पे है? कॉम पोर्ट 11। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके यहाँ 1 की बजाय 11 लिख दूंगा और कर दूंगा ओपन। तो आप देखेंगे कि मुझे इसी तरह का मुझे एक टर्मिनल मिल जाएगा, जिसके जरिए मैं इस स्विच के साथ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं कनेक्ट हो जाऊं। लेकिन लेकिन अरबाब, इसकी मसला ये है, बाकी सारी चीजें तो ठीक, इस केबल का लेंथ कितना है? ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 3 मीटर। इसका मतलब है कि जहां भी ये स्विच या राउटर या एक्सेस ग्रुप है, एएसए लगा होगा, फायरवॉल लगा होगा, मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे उसके पास जाना होगा। अब लाभी तौर पे अगर मैं कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मेरे पास जो डिवाइसेस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं। सारे के सारे एक ही बिल्डिंग में होना लाजमी हरगिज नहीं। मल्टीपल बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं, और वो लोकेशंस आपस में काफी एक दूसरे से दूर भी हो सकती हैं। तो फिर मुझे इसका मतलब है कि हर वक्त ट्रैवल करना होगा इनके पास। तो पहले मैं इसको कैंसिल करके आपको ये दिखाता हूं कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे एक अदद लैपटॉप चाहिए, या डेस्कटॉप चाहिए, पीसी चाहिए। तो चले मैं लैपटॉप ले लेता हूं। और फिर जब मुझे कनेक्ट होना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड ए कंसोल केबल। तो दिस ब्लू वन इज द कंसोल केबल। तो आई क्लिक दिस कंसोल केबल and I put it on the serial port on the laptop side, because luckily the laptop has the serial port। नहीं होती तो फिर हमें क्या, इसको कन्वर्टर के जरिए कन्वर्ट करना होता। एंड इस साइड पे मुझे कंसोल केबल, नॉट ऑन द डेटा पोर्ट, not in on the any data port. What I need a console port. Similarly, I will click this laptop, go to the terminal desktop, and terminal, not the command prompt, terminal। टर्मिनल में गया, तो उसी तरह इसने मुझे कुछ पैरामीटर दिए कि इससे आपको कनेक्ट करूंगा। मैंने कहा कर दो। तो देखें, ये मुझे स्विच का कंसोल मिल गया। अब मैं इस प्रेस करूं रिटर्न को, तो आई हैव द स्विच टर्मिनल। और इस स्विच पे ये बताता चलूं कि 3 या 3 से ज्यादा, मिनिमम 3, 3 जो है वो, इसको मैं हटा देता हूं। 3 जो है आपको ये नजर आ रहे हैं, देखिए ग्रेटर देन का साइन। इस ग्रेटर देन का साइन का मतलब ये होता है कि दिस इज द यूजर एग्जिट मोड। यूजर एग्जिट मोड, दिस इज द लीस्ट प्रिविलेज मोड। इसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते स्विच में। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर अथॉरिटी है, तो आप इसके आगे कमांड दें, इनेबल। क्या कमांड दें? इनेबल। इनेबल देने के बाद आपका प्रॉम्प्ट, जो कि ग्रेटर देन का साइन था, दैट विल बी चेंज टू दी हैश सिंबल। एंड इट मीन्स दैट नाउ यू आर नो मोर इन दी यूजर एग्जिट मोड, you are in a privilege mode, you are in the privilege mode, which is a powerful mode। देन अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, तो इस हैश पे कमांड दें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, and you will find कि your hash का sign will change with a config
जो भी आपके डिवाइस का नाम है, मिसाल के तौर पे S1, तो S1 के साथ ही कॉन्फ़िग आ जाएगा, जो कि बताएगा कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए हैं। इसी तरह अगर आप यहां पे बैठे हुए कमांड दे दें S1 के ऊपर, कॉन्फ़िग के ऊपर, मिसाल के तौर पे लाइन इंटरफेस, लाइन इंटरफेस, इंटरफेस नॉट लाइन, इंटरफेस, जी, इंटरफेस VLAN 1, तो आप देखेंगे कि यहां पे S1 के सामने लिखा आ जाएगा कॉन्फ़िग, सॉरी, कॉन्फ़िग और डैश लाइन। इसका मतलब कि आप इस VLAN, शायद इंट है, अभी करके दिखा देता हूं, तो हैश उसी तरह। इसका मतलब कि आप इस VLAN की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं। बात समझ आ रही? इज क्लियर एवरीवन? एनी वन ऑफ यू जो उसको मेरी इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आ रही? एक क्वेश्चन तो मेरे लिए आ गया हुआ है, एंड दैट इज मरवान का, सर व्हाट इज meant by the privilege mode? Okay, very nice. The meaning of the privilege, as it is meaning by privilege, which means more power. Sir kindly once again, लेकिन अगर साथ ही आप ये बता दें कि क्या मैं once again बता दूं, ताकि, क्योंकि क्या आप चाहते हैं सारी चीजें, कहां से मैं आप once again, लेकिन अगर आपका सवाल यही है तो मैं ये सारे स्टेप्स यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये स्टेप्स करें। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं किस पे हूं? मैं हूं ग्रेटर देन के साइन पे। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं इनेबल, मैंने ये कहा था ना इनेबल लिखो, तो इनेबल लिखने से, अच्छा इससे पहले देखें ताकि मरवान का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊं, इट इज लाइक ए हेल्प, इट इज लाइक, तो ये मुझे बता रहा है कि आप जस्ट ये काम, चंद काम कर सकते हो, इसके अलावा आपको कोई काम करने की इजाजत नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये लीस्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब है ताकत, राइट्स, पावर, काम करने की सलाहियत। तो आपके पास कोई पावर यहाँ पे नहीं नजर आ रही, कोई इंपॉर्टेंट कमांड आपको एग्जीक्यूट करने की इजाजत नजर नहीं आ रही। ठीक है ना जी? अब अगर मैं इसको ये कर दूं, अगर मैं इसको ये कर दूं, इनेबल इसके आगे लिख दूं आमिना, तो आप देख रहे हो कि जो ही मैंने यहाँ इनेबल लिखा, इसका साइन, ग्रेटर देन का साइन बदल के हैश हो गया। इसका मतलब देखिए हैश हो गया। हैश का मतलब है मैं किस मोड में चला गया? प्रिविलेज मोड में। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो मरवान को जवाब मिला, देखो कितनी ज्यादा कमांड मेरे हवाले आ गई हैं, ये जो पहले नहीं थी अब वो मुझे मिल गई हैं। अब देखें इवन मैं यहाँ पे बैठ के कुछ चीजों को इरेज भी कर सकता हूँ। इरेज करना कोई इतनी आम बात नहीं है। मैं क्लॉक चेक कर सकता हूं, मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, मैं कॉपी कर सकता हूं, मैं डिबग कर सकता हूं, जो कि मैं पहले नहीं कर सकता था। इवन मैं रीलोड, रीलोड का मतलब है रीबूट, मैं रीबूट कर सकता हूं डिवाइसेस को। इसका मतलब मुझे पास सारे खतरनाक कमांड्स आ गए हैं। बात समझ आ रही है ना? इसलिए हम कहते हैं ये प्रिविलेज मोड है। ये कौन सा मोड है? ये प्रिविलेज मोड है। और ये कहता है कि अभी खत्म नहीं हुई, मोर कमांड्स हैं। तो अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो वन बाय वन नजर आएंगी, और अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा पेज आगे चला जाएगा। तो मैं वन 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 शो करता हूं, SSH, ये भी हम करने वाले हैं इसके बाद। टेलनेट, टर्मिनल। अब देखें SSH किस लिए होता है? रिमोट लॉगिन के लिए, बताऊंगा अभी कुछ देर में। तो बताइए मुझे ताकत मिल गई है, पहले मेरे पास ये ताकत नहीं थी। इसे क्लियर हुई बात? देखिए, मुझे ये कमांड जो मेरी पहले पहले नहीं थी, अब वो भी मेरे पास। राइट, राइट मीन सेव, सेव की पावर मिल गई। इज क्लियर एवरीवन? क्या स्टेटस है आमना और इकरा, क्योंकि आप लोग ने बाद में ज्वाइन किया था? क्लियर है? ओके नाइस।
ओके, सबको क्लियर है, अच्छी बात है, दैट्स गुड कि आप लोग फीडबैक देते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि यहाँ पे क्या लिखो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो देखें जी, मैंने लिखा कॉन्फ़िगर, मैंने यहां लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्विच के नाम के आगे पहले हैश था डायरेक्टली, अब हैश के और स्विच के दरमियान में कॉन्फ़िग आ गया। इसका मतलब अब मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन के काम कर सकता हूं जो मैं पहले नहीं कर सकता था। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखता हूं लाइन VTY, सॉरी पहले लिख लेते हैं इंटरफेस VLAN 1, VLAN 1, तो देखिए मेरा ये तब्दील होके कॉन्फ़िग डैश इफ हो गया। मैंने कहा था यहाँ पे LN नहीं आएगा, IF आएगा, इंटरफेस आएगा। इसका मतलब अब मैं जो कुछ करूंगा मैं इस VLAN में से खेलूंगा। तो इट मीन अब मेरे पास ज्यादा चीजें करने की सलाहियत आ गई है। इसी तरह अगर आप मुझे से निकलना चाहता हूं तो वेरी सिंपल, एग्जिट प्रेस करें, एग्जिट लिखें। देखिए मैं इफ से वापस कॉन्फ़िग पे चला गया। ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं लाइन कंसोल 0, तो देखिए यहाँ पे चेंज होके क्या आ गया, मैं चला गया कॉन्फ़िग डैश लाइन में। इसका मतलब अब मैं जो भी काम करूंगा मैं इस कंसोल पे करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, पहले कभी किए? जनाब, अब मैं क्या करना चाहता हूं, दो सवाल हैं। सर ये वीलैन का एक्सप्लेन करें, ओके। सर ये लाइन कंसोल क्या है, ओके। दो सवाल आ गए। एक सवाल ये है कि ये वीलैन क्या है। तो अभी ब्रीफली बता रहा हूं, और हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है स्विचिंग राउटिंग का, उस पे दो चैप्टर्स हैं वीलैंस पे। वीलैन का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे, इसका जवाब ये है सवेरा, बताएंगी इकरा क्या होता है वीलैन? सवेरा पूछ रही है। तो मैं इसकी एग्जाम्पल ये देता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ लोग हैं, स्टाफ है, उसमें फैकल्टी के लोग भी हैं, उसमें स्टूडेंट भी हैं, उसमें गेस्ट भी आते हैं, और उसमें सपोर्ट स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। एग्रीड विद मी? अब लाजमी तौर पे कभी भी मैं नहीं चाहूंगा, फैकल्टी नहीं चाहेगी कि उसकी सारी चीजें नॉन टीचिंग स्टाफ देखें या स्टूडेंट देखें या इवन गेस्ट देखें, नॉट डिजायर्ड। क्यों शाया? नॉट डिजायर्ड ना? तो क्या करें? इसका मतलब है कि हम हर एक के लिए अलग अलग नेटवर्क्स, अलग अलग लोकल या नेटवर्क्स बना दें, लेकिन इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि नॉर्मली एक ही बिल्डिंग में स्टूडेंट भी होता है, फैकल्टी भी होती है, गेस्ट भी होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पे बैठे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ही फ्लोर पे मुझे चार नेटवर्क बनाने हैं। इसका मतलब है कि मैं काफी खर्चा करने लगा हूं। न सिर्फ ये बल्कि उतने ज्यादा हार्डवेयर भी खरीदूंगा, जहां एक स्विच चाहिए वहां चार स्विच खरीदूंगा, एक फैकल्टी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक गेस्ट के लिए, एक नॉन टीचिंग के लिए। उतनी केबलिंग भी ज्यादा होगी, तो उतने ज्यादा लोग भी मुझे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे इनको मैनेज करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। व्हाई नॉट, आई शुड बी यूजिंग ए सिंगल हार्डवेयर लाइक दिस स्विच। अभी मैंने आपको स्विच दिखाया, एंड आई डिवाइड दिस स्विच इनटू फोर डिफरेंट, नॉट फिजिकली। ये नहीं कि आप कहेंगे जी को थोड़ी वगैरह ला के आपने तोड़ना शुरू कर दिया कि मैंने स्विच के चार हिस्से करने हैं। नहीं, लॉजिकली सॉफ्टवेयर में मैं इसको चार हिस्सों में तोड़ देता हूं, मैं इसको चार हिस्सों में तोड़ देता हूं, और मैं ज्यूम करता हूं कि मिसाल के तौर पे 1 से लेके 8 तक पोर्ट जो है वो फैकल्टी को दे देता हूं। इसी तरह 9 से लेके 16 तक मैं दे देता हूं स्टूडेंट्स को।
इसी तरह 17 से 20 तक फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं गेस्ट को, और 21 से 24 तक दे देता हूं नॉन टीचिंग स्टाफ को। तो अब एक ही स्विच में ऐसे लग रहा है, फिजिकली तो लग रहा है कि एक ही स्विच है, एक ही नेटवर्क है, लेकिन लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें, इसको पढ़ें, तो पता ये चलेगा कि लगेगा ऐसे कि ये चार मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक फैकल्टी का अलग है, स्टूडेंट का अलग है, गेस्ट का अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ का अलग है। तो फिजिकली तो ऐसा नहीं है, नजर तो ऐसा नहीं आ रहा, इसलिए इन लैंड्स को हम कहते हैं विर्चुअल लैंड्स। क्या कहते हैं? विर्चुअल लैंड्स। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर एक ही VLAN होता है। कितने VLAN होते हैं? एक ही। इसलिए मैंने लिखा VLAN 1। अगर मैंने कुछ और VLAN क्रिएट किए होते, जो कि मैं कर सकता हूं, जो कि हम अगले कोर्स में करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने VLAN 10 भी बनाया हुआ है, 20 भी बनाया हुआ है, 30 भी बनाया हुआ है। दीज आर जस्ट दी आईडीज, दे आर जस्ट दी आईडी। Then I can write here interface VLAN 10, interface VLAN 20. तो 20 पे जाऊंगा, तो I will be configuring all the details related to VLAN 20 then. अब उसका सवाल का जवाब मिल गया सवेरा को। फिर आपने लिखा कि जी कंसोल क्या। कंसोल का मतलब ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जब मैं इस केबल से कनेक्ट होता हूं, तो दैट इज कॉल्ड द कंसोल केबल। अगर मैं इसके ऊपर कोई पासवर्ड लगाना चाहता हूं, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा लाइन कंसोल 0, एंड देन आई विल बी गिव द पासवर्ड। मैं ये भी कर सकता हूं कि कोई ऐसा टाइम दे दूं कि अगर इतने टाइम तक कोई लॉग इन ना करे, यानी उस पर काम ना करे, उसको लॉग आउट कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर एवरीवन? दो सवाल और आगे माशाल्लाह। सर, है लाइन कंसोल क्या है, ये तो मैंने जवाब दे दिया ना। उसके बाद है जी इकरा का, virtual group or devices on the same switch। लाजमी नहीं कि सेम स्विच हो, इट कैन बी ऑन डिफरेंट स्विचेस एज वेल। तो वर्चुअल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, चलो कह लें कि virtual ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, लेकिन बेसिकली दी डिवाइसेस आर रियल, दे आर नॉट virtual। यानी कि इससे ऐसा, आपकी डिफिनेशन से ऐसा वो मिलता है कि जो डिवाइसेस यहाँ पे लगेंगी, दे विल बी virtual डिवाइसेस। virtual से कहते हैं विच आर नॉट फिजिकली देयर। नो, दीज ऑल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड, they are real devices, like your laptop, like your desktop, like your servers. So they are not virtual। यहाँ पे सिर्फ virtual जो चीज है, that is a LAN। कि यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये 8 पोर्ट और ये 9 पोर्ट्स, ये 8 पोर्ट्स, ये 8 पोर्ट्स, ये 4 पोर्ट, ये 4 पोर्ट, दे आर making a different network, which is not the case। That's the reason we call them virtual LANs। फिर हमने आमिना ने पूछा, सर डज config dash if shows that we configure we are configuring a specific VLAN। जी, जब मैंने यहाँ लिखा इंटरफेस VLAN 1, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे जब इफ आ गया, जब मैंने यहाँ पे इफ आ गया जैसे आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वट एवर आई विल बी कन्फिगरिंग, दैट आई विल बी कन्फिगरिंग ए VLAN, एंड दैट इज स्पेसिफिक VLAN विच इज VLAN ओनली VLAN 1। बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चन अरबाब? लेकिन जो कुछ अभी तक मैंने बोला, ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। मेरा आज का टॉपिक क्या है, लेकिन वो इस सवाल के बाद लेना चाहूंगा, और 1 मिनट से कम है, मैं चाहूंगा कि कनेक्शन ड्रॉप भी कर दूं। सवेरा, सर हम अभी अभी भी क्रिएट कर सकते हैं VLAN? बिल्कुल कर सकते हैं जी। इस पुटी के थ्रू ही क्रिएट होते हैं VLAN। मैंने यही चीज, मेरा अभी का सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। सर हमें कैसे पता चल चलेगा कि स्विच में कितने VLANs हैं? ओके, आसान सा सवाल है जी। मिसाल के तौर पे मैं स्विच पे हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये मैंने क्लियर कर दिया, और मैं ऑलरेडी स्विच पे हूं जी।
तो मैं यहां पे करता हूं एग्जिट, और यहां से भी एग्जिट, और यहां कर देता हूं शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन। ओके जी। तो मैंने क्या कमांड दी सवेरा के सवाल के जवाब में? मैंने इसको कमांड दे दी शो वीलैन ब्रीफ। मैं इंटर करता हूं। जो ही मैंने इंटर किया इसने मुझे बता दिया कि जनाब आपके डिवाइस में ये एक वीलैन 1 है जिसका नाम डिफॉल्ट है, और ऑल 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स एंड 2 गीगाबिट, टोटली 26 हैं। ऑल द पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ द वीलैन 1। बाकी ये 4 वीलैंस हैं जो कि किसी काम के नहीं है। दे आर रिलेटेड टू द लेगेसी टेक्नोलॉजीज एंड नो मोर यूज। दैट द रीजन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी जो एक्चुअल पोर्ट है वो इसका हिस्सा नहीं। तो हम अपनी मर्जी से और वीलैंस बनाएंगे अगले कोर्स में, और फिर यहां से पोर्ट उठा के, जैसे मैंने अभी अभी मैंने उस डायग्राम में कहा था कि पहले 8 पोर्ट जो है मिसाल के तौर पे वो टीचर को, फैकल्टी को दे दें, कहा था ना। अगली 8 पोर्ट मैंने कहा कि किसको दे दो, स्टूडेंट को दे दो। अगली 4 पोर्ट जो है वो गेस्ट को दे दो। अगली 4 पोर्ट जो है, सॉरी, गेस्ट को दे दो। अगली 4 पोर्ट जो है वो किसी और को दे देंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ को दे देंगे। तो यहीं से मैं ये पोर्ट्स इनके दरमियान में बांटूंगा, और लगेगा ऐसे कि एक ही स्विच है, लेकिन एक ही देखने में फिजिकली एक नेटवर्क नजर आएगा, लेकिन रियलिटी में दे आर 4 डिफरेंट नेटवर्क्स, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं है, सॉफ्टवेयर में है। दैट द रीजन वी कॉल देम वर्चुअल लैब। क्लियर होगी मेरी बात? अगेन जनाब, मेरा ये टॉपिक नहीं है। ओके। सवाल ये पूछा गया सवेरा ने कि हम कितने वीलैन बना सकते हैं। तो आप 4096 वीलैंस बना सकते हैं। आप 4096 वीलैंस बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम बता दिया। और आपने पूछा कि पुटी कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। नहीं जी, पुटी कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करता। पुटी जो है एक एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ आपको अपनी ऐसे डिवाइसेस जिनके, लाजमी नहीं, लेकिन मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको कोई कीबोर्ड माउस ये चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो आप पुटी के जरिए उसके उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप पुटी के जरिए किसी दूसरे डिवाइस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। उसको तो या टेलनेट कर सकते हैं, एसएसएच कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो टेलनेट एक सिर्फ आपको रिमोटली, यानी कि बगैर उस चीज डिवाइस से कनेक्ट हुए एक कंसोल केबल से कनेक्ट करवा देता है। पोटा राइट क्या चीज है? बेस्ड ऑन पोटा राइट्स पोर्ट्स। तो एक ही कंसोल पोर्ट होती है डिवाइस में, हमने देखा। ओके, नाइस। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि अगर मिसाल के तौर पे, एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन आज माशाल्लाह ज्यादा आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो समझ आ गई, अच्छी बात है जी कि समझ आ गई है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस स्विच के साथ, इवन मैं ये बना लेता हूं कि टू मेक इट, चले दो तरह से इसको एक्सप्लेन करता हूं, कि एक चीज ये कर देता हूं कि मैं यहां पे एक एक अदद डिवाइस ले आता हूं, मिसाल के तौर पे एक पीसी ले आता हूं, और इस पीसी को लेडीज एंड जेंटलमैन मैं एक स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देता हूं इसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट को, इसकी किसी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक और स्विच लगा लेता हूं, एक और स्विच भी लगा लेता हूं जो कि किसी दूसरी बिल्डिंग में पड़ी है, और इन दोनों स्विचेस को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं वाया एक क्रॉस केबल। तो मैंने इसके लिए गीगाबिट पोर्ट इस्तेमाल कर ली, मेरी मर्जी। और मैं यहां पे एक डिवाइस, एंड डिवाइस, जो कि एक पीसी है अगेन, वो मैं यहां लगा देता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको भी हम एक स्ट्रेट केबल के जरिए आपस में कनेक्ट कर देते। ये मैंने कनेक्ट कर दिया।
तो अभी इस वक्त ये स्विचेस और ये डिवाइसेस आपस में निगोशिएट कर रहे हैं ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, certain protocols are running. That the reason is showing you the orange. लेकिन after a certain time, this will become green. ठीक है। अब क्वेश्चन ये है अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुमकिन है कि मैं ये कंसोल केबल से छुटकारा हासिल कर लूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा मसला क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि अरबाब मैं इस कंसोल केबल से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। क्योंकि ये कंसोल केबल तो सारी 2 फीट की है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर की है। इसका मतलब मुझे उस डिवाइस के तकरीबन 2 मीटर के फासले पे जाके लगाऊंगा, काम कर लूंगा, काम सारे होंगे कंसोल से, ये नहीं कंसोल से वो काम नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं अपने घर में बैठे हुआ हूं इस पीसी पे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं इस पीसी पे, और मैं यहां से इस स्विच के ऊपर लॉग इन कर जाऊं। क्या कर जाऊं? लॉग इन कर जाऊं। इसमें मतलब रिमोटली लॉग इन करना चाहता हूं, और वो सारे काम जो मैं इस कंसोल केबल और कंसोल पोर्ट के जरिए करता था, अब मैं यहां से बैठ के करना चाहता हूं। इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या ख्याल है शायद? यस इट्स पॉसिबल। यही तो हम चाहते हैं। लाजमी तो नहीं कि भाई, मिसाल के तौर पे ज्यूम कर लें कि आईएम साइंसेस भी हमारा हिस्सा है। अब आईएम साइंसेस में एक डिवाइस में कोई मसला आ गया है, किसी स्विच में, किसी राउटर में, किसी फायरवॉल में, तो मैं यहाँ से अपना एक कंसोल केबल उठा के वहां जाऊं और वहां से ठीक करके वापस ना आऊं। आई एम वेस्टिंग माई टाइम। Why not? I should be sitting here on my PC, my office, and I connect to that switch, which is might be in Hyderabad, which might be in I'm Sciences, which might be in some other city, even other country as well. Yes, it's possible. So for this, what I need to do, I need to configure. I can configure 2 protocols for this purpose. लेकिन एक कोई क्वेश्चन आया हुआ है। जी, तो जवाब में आया कि जी आई कैन डू दिस वर्क थ्रू SSH, or I can do this work through Telnet. I can use Telnet, or I can use the SS secure shell. SSH means secure shell. Only the difference between the two is that, for example, I'm sending my username. Definitely, I need to log into this. I need to log in to this switch, and then I can do the configurations whatever I want. I can add something or I can delete something. ऐसा ही है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हर कोई आए और इसके अंदर इंटर हो जाए। नहीं। फॉर दिस व्हाट इज नीडेड? आई नीड टू लॉग इन देयर। तो इसका मतलब है कि मुझे, या अब लॉग इन करने के बाद मैंने लॉग इन के लिए क्या भेजा? यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड। तो अगर कोई शख्स इस स्विच पे अपना डिवाइस कनेक्ट कर ले और ये यूजर नेम पासवर्ड देख ले, तो फिर तो वो भी कनेक्ट कर जाएगा। तो लाजमी तो यूजर नेम और पासवर्ड तो मेरा इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता मैंने नहीं किया। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैंने नहीं किया। ऐसे ही है ना? तो इसके लिए जरूरी है कि अगर मैं चाहता हूं कि प्लेन टेक्स्ट में जाए, कोई मसला नहीं है, तो आई मे बी हैप्पी विद द टेलनेट। लेकिन इफ आई वांट दैट ऑल माय कमांड्स एंड माय लॉगिन क्रेडेंशियल शुड गो इन एन encrypted फैशन, इन ए साइफर फैशन, then instead of using the telnet, I must be using the SSL। बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो काम हम करना चाहते हैं वो ये है कि क्या हम इस कंप्यूटर पे SSH कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम बनाएंगे SSH सर्वर, और यहाँ पे हम रखेंगे SSH क्लाइंट, जो कि ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है। एंड दिस क्लाइंट विल टॉक टू दिस सर्वर, will log into the server, and will then do the whatever the configuration I did using the console cable।
But for the first time, I need this console cable to configure this SSH server. Once this SSH server is configured, then I will remove this console cable forever, and always I will be connecting through any device attached to this network. जी क्वेश्चन करें. Waiting for your questions. So there is one question. Amin. Sir, first time configuration can only be done through console. Yes, very rightly you said. First time you need to do you have to connect to the device, to the console. Once you configure the SSH server, then you don't need the console cable. You don't need the console port. Then you can connect it to any device like here, like through this or through this. No masla. And these devices may be in the same building, maybe in the same uh, location, or maybe on different locations as well. No masla. क्लियर हो गया. जी काशान अख्तर, तो समझ आ रही है कि नहीं? दानियाल, इकरा, असद. अगर नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन करें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके फर्दर आपको क्लैरिफाई कर दूं. लेकिन एक्टिव रहें, पैसिव मत बने. जी रिजवान, हम अभी जब काम शुरू करेंगे तो हम इस स्विच को एक आईपी दे देंगे, और उस पर भी हम कुछ देर में बात करता हूँ. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर, कैरी ऑन. थैंक यू. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं. तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने कहा कि मुझे करने के लिए इस डिवाइस को एक आईपी देना होगा. क्या देना होगा? आईपी देना होगा. अब मेरे स्टूडेंट मुझे कह रही हैं, इनकी दिल से आवाजें मैं सुन लेता हूं ना. क्यों शुमाइम? शुमाइम ये कह रही है कि स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है. वेरी राइट. स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है, और आईपी तो लेयर 3 पे होता है. इसका मतलब मैं तो इसको आईपी नहीं दे सकता, और अगर आईपी नहीं दे सकता तो फिर मैं किस तरह यहां से इसके पास आऊंगा? तो मसला बन गया. तो हम क्या करते हैं? हम इसकी एक वर्चुअल इंटर हम मानते हैं ये बात शुमाइम की कि जी ये लेयर 2 डिवाइस है, लेकिन इसमें एक इंटरफेस वीलैन की है जो पोर्ट नहीं है, इंटरफेस है. और इंटरफेस इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लेयर 3. रिलेटेड टू लेयर 3. हम इस इंटरफेस को, जो कि अभी आपने देखा, अभी सवेरा ने क्वेश्चन किया था कि कितने वीलैन है, तो हमने देखा था कि इसमें एक वीलैन है बाय डिफॉल्ट, जिसका नाम है, जिसकी आईडी है, नाम नहीं, नाम नहीं, आईडी है 1. नाम तो उसका था डिफॉल्ट. नाम तो उसका था डिफॉल्ट. तो हम इस वीलैन को एक आईपी असाइन कर देंगे, और उस इंटरफेस को फिर हम कहेंगे स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, क्योंकि ये भी तो एक वीलैन है ना, वर्चुअल लैन है. तो उस इंटरफेस को हम क्या नाम देंगे? स्विच वर्चुअल इंटरफेस. तो हम जितने वीलैन बनाए हम उतने एसवीआई बना सकते, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही वीलैन है. तो जो भी हम आईपी देंगे इसको, मिसाल के तौर पे इसको हम आईपी दे देते हैं, दे देंगे 192.168.1.1.
वन। हम इस डिवाइस को दे देंगे 192.168.1.2, और इस डिवाइस को हम दे देंगे फॉर एग्जांपल 192.168.1. में भी 10। तो फिर हम इन डिवाइसेस पे बैठ के इसको एक्सेस कर लेंगे बाय यूजिंग दिस आईपी, विच इज बेसिकली एन आईपी ऑफ ए स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो पहला काम हम ये करते हैं कि किस तरह हम लर्न करते हैं कि बाय यूजिंग द कंसोल how we can create an SVI, how we can create a SVI। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम दो सवाल आ गए। आमिना, सर इफ वन पीसी हैज ऑलरेडी डन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन? ये पहला पढ़ लेने दे पूरा। सर इफ वन पीसी हैज ऑलरेडी डन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, will new PC also have a use the console cable for configuration? फिर है, और न्यू पीसी कैन डू इट बाय सिंपली कनेक्टिंग दी टू द नेटवर्क। नहीं, आपने पीसी को, अगर आप इन पीसीज की बात कर रहे हैं, तो इन पीसीज पे आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि मैं अभी आपके सामने करूंगा। नॉट एन इशू। हाँ, अगर आप इस लैपटॉप की बात कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ पुटी चाहिए, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। चाहे वो आप इस कंप्यूटर को हटा के दूसरा कंप्यूटर लगा लें, उसमें पुटी है, बस ठीक है, वो कंसोल के जरिए इसके साथ कनेक्ट होगा, ऑलवेज होगा। डू यू गॉट द आंसर, आमिना? यस सर, वी कैन गिव एनी आईपी एड्रेस। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा जी, हम इसको आईपी भी देना चाहते हैं। गुड। तो आमिना समझ गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने इस लैपटॉप को ओपन किया, और जैसे मैंने पहले आपको बताया, चले हम यहां से इसको खत्म कर देते हैं। मैं इसको ओपन करता हूं, इसके टर्मिनल में जाता हूं, और इसको कहता हूं ओके। जो ही मैंने ओके किया, तो मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। हो गया ना जी? देखिए, मुझे कह रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। अब मुझे कहाँ जाना है? वीलैन पे जाना है। कहाँ जाना है? वीलैन पे जाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? इनेबल मोड में जाऊंगा, प्रिविलेज मोड में जाऊंगा। जो ही मैंने इनेबल लिखा, तो मेरा हैश बन गया। इसका मतलब है कि दैट इज गुड। फिर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप, कि मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और और अरबाब में चला गया स्विच से स्विच कॉन्फ़िग पे। अब इसके बाद मैं यहां लिखूंगा इंटरफेस वीलैन, वीलैन, जो भी वीलैन है, क्योंकि अगर नहीं पता तो यहां से करें एग्जिट, और कमांड दे शो वीलैन, तो वीलैन, तो ये आपको दिखा देगा कि जनाब मेरे पास एक ही वीलैन है, और सारी की सारी पोर्ट जो है वो इसी वीलैन का हिस्सा। और उस वीलैन का आईडी क्या है? 1। और नेम क्या है? डिफॉल्ट। और इस वीलैन की 1 की टाइप क्या है? इथरनेट। कौन सी टाइप है? इथरनेट। ओके। लेकिन समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट की छुट्टी भाग रहे हैं, मैं मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा। मरवान कहता है ठीक है, ओके सर। ओके जी, कमर। तो जनाब यहां पे मैंने वीलैन देख लिया कि वीलैन कौन सा है? ओनली वीलैन 1। अब इसमें जाने का तरीका क्या है? आई विल गो टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल। व्हाट इज द कमांड? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। I enter the configure terminal, and then I give the command interface VLAN 1. What is the command? Interface VLAN 1। मैंने ये इंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरी
प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कन्फिग से कन्फिग डैश इफ। क्या चेंज हो गया? कन्फिग डैश इफ। अब मुझे इसको क्या देना है शायान? टास्क क्या है हमारा? आईपी देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं इसको? आईपी देना चाहते हैं। और क्या डिसाइड हमने किया था? चलें जी, हमने ये मार्कर से लिखा तो ये मिट जाता है। हम परमानेंटली इसके साथ लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। हम इसको एक आईपी देना चाहते हैं 192.168.1.1। हम इसको सबनेट मास्क देना चाहते हैं 255.255.255.0। इसी तरह हम इस पीसी को देना चाहते हैं 192.168.1.2 फॉर एग्जाम्पल, विद सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0। ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अभी दिए नहीं है। सिर्फ यहाँ परमानेंट लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। चाहे तो हम इस स्विच को भी दे सकते हैं आईपी 192.168.1.2। उसको दिया तो 3 उसको दे देते हैं अगर देना चाहें। इस वक्त देने की मेरे को मूड नहीं है। 255.255.0। और इस पीसी 1 को, जिसको अगर नॉर्मली जब जो पीसी हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं कनेक्टिविटी के, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट पीसी। क्या कहते हैं? ये एडमिन पीसी। तो एडमिन पीसी का जो है आईपी वो है 192.168.1.10। और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो मैंने परमानेंटली इनके ऊपर लिख दिया ताकि याद रहे। क्लियर हो गया जी? तो अब मैं जाता हूं इस स्विच के वापस लैपटॉप के पास। और लैपटॉप ने है मुझे, मैं बैठा तो लैपटॉप पे हुआ हूं। तुम्हारे मैं बैठा किस पे हुआ हूं? लैपटॉप 0 पे। लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट किसका हासिल है? स्विच का। इसका मतलब मैं इंटर तो स्विच लैपटॉप पे कर रहा हूं। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? स्विच पे हो रहा है। यानी ये आईपी किसको मिलेगा? स्विच को मिलेगा, लैपटॉप को नहीं मिल रहा। तो क्या कमांड है? कमांड है आईपी एड्रेस। क्या कमांड है? आईपी एड्रेस। जो एड्रेस आपने डिसाइड किया, क्या आईपी आपने डिसाइड किया? 192.168.1.1। 192.168.1.1। ये किया ना? और सबनेट मास्क क्या डिसाइड किया? 255.255.255.0। बिल्कुल ठीक है आपने। और इंटर कर दें। कर दिया? कर दिया। वेरी नाइस। और साथ इसको कमांड दे दें नो शट डाउन। क्या कमांड दे दें? नो शट डाउन। और इंटर कर दें। देखिए ये कह रहा है कि गौर से अगर पढ़े तो कह रहा है कि जी इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू आप। ठीक है। अब अगर मैं इसको कमांड दूं यहां से एग्जिट करके या एंड करके, शो इंटरफेसेस VLAN 1। क्या कमांड दी मैंने? सिर्फ शो करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं मैंने कुछ किया भी है कि नहीं किया। तो ये बता रहा है, ये देख लें जी VLAN 1 के बारे में कि VLAN 1 अब क्या हो गया है? आपको हो गया है। खुशी की खबर। और इसको एक आईपी एड्रेस मिल गया है 1.1, जो पहले नहीं था, बल्कि पहले तो ये डाउन था। अब ये बता रहा है कि ये अप हो गया है। और ये जो /24 है ये बता रहा है सबनेट मास्क। ये क्या बता रहा है? सबनेट मास्क, जिसको आप नेट मास्क भी कहते हैं बाज केसेस में। तो यानी जो हमने काम किया वो यहाँ पे हो गया है। आप इसी को यूं भी चेक कर सकते थे कि कमांड देते शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए यहां भी आपको ये नजर आएगा कि VLAN 1 ये देख लें VLAN 1 को आईपी एड्रेस ये मिल गया। और ये आप है,
इसका मतलब है कि मैं शफीक से पूछूं कि शफीक मैंने क्या किया, तो शफीक मुझे क्या जवाब देगा? ओके, क्या ख्याल है आमिना और इकरा, क्या मैंने अभी तक क्या चीज मैंने अचीव कर ली, क्या चीज मैंने कंप्लीश कर ली, क्या चीज मैंने कॉन्फ़िगर कर ली? शाबाश, जल्दी से जवाब आना चाहिए। भाई सिंपल सा जवाब है, मैंने स्विच विजुअल इंटरफेस बना ली है, मैंने एसवीआई बना ली है, मैंने स्विच को आईपी दे दिया है जो पहले नहीं था। ठीक है, तो पहला काम हो गया कि स्विच को नाम मिल गया, स्विच को एक टेक्निकल नाम इन दो वर्ड कहने मिल गया, एड्रेस मिल गया। बिल्कुल ठीक है, वीलैन वन को अप करके आईपी असाइन किया, टेक्निकल वर्ड में कहना चाहिए था एसवीआई बना दी, असाइंड आईपी एंड सबनेट मास्क विद स्विच। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है, यही बात हमें शफीक ने भी बताई। लेकिन टेक्निकल अगर कहते तो मैंने क्या बना दिया है, एसवीआई बना दिया है। यानी कल आप लोग कहता है जी एसवीआई कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आपने इधर उधर करके नहीं देखना कि पता नहीं किससे बात कर रहा है, आपने कहा यस व्हाई नॉट। चीजें मुश्किल नहीं होती, टर्मिनोलॉजी से आदमी डरता है। अब आपको ये आ गया। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं कि पहला काम हमारा हो गया। अब हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं किसके लिए, एसएसएच के लिए। पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने एसबीआई बना दिया। नहीं बनाया तो बात करो, नहीं बनाया तो बात करो। नहीं बना दिया ना? अब आए जी, पहले तो देखो इसमें एसबीआई बन भी सक, सॉरी एसएसएच हो भी सकता है कि नहीं, ऐसे ही हम करते रहे। बल्कि एसबीआई से ही पहले चाहिए ये था कि चेक करते कि इसके अंदर एसएसएच पॉसिबल भी है कि नहीं है। क्यों जनाब इंजीनियर साहब, चेक करना ही था ना, करना चाहिए ना। तो वो कैसे चेक होगा? कि क्योंकि एसएसएच मैंने अभी कहा कि सिक्योर है। दोनों में, टेलनेट में और एसएसएच में क्या फर्क है? टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में सारी चीजें भेजता है, और एसएसएच उन्हीं प्लेन टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट की बजाय साइफर टेक्स्ट में भेजता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दोनों में फर्क हमने ये कहा कि टेलनेट साहब जो हैं वो, जी टेलनेट जो है वो प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, जबकि एसएसएच उसी टेक्स्ट को साइफर करके भेजता है। गॉट इट? क्लियर? अब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? की चाहिए। क्या चाहिए? की चाहिए। की चाहिए बिटवीन दी, कि अगर ये उसको साइफर कर रहा है तो लाजमी तौर पे इसको डी साइफर करेगा, डी साइफर करेगा। ऐसा ही है ना? तो इसको साइफर करने के लिए की चाहिए, और इसको डी साइफर करने के लिए की चाहिए। और ये एक प्रोटोकॉल इनके दरमियान में होगा इस इंक्रिप्शन करने के लिए, जो कि हमारे केस में इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज आरएसए। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का नाम है आरएसए। क्लियर? क्या ये स्विच क्या ये स्विच इस प्रोटोकॉल्स को और इसकी जनरेशन को सपोर्ट करता है? तो फिर तो इसका मतलब एसएसएच बनाना मुमकिन है। और अगर नहीं करता, फिर मजबूरी है, टेलनेट ही करना पड़ेगा। करें क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। पहला काम तो ये कर लें कि ये चेक करना चाहते हैं कि
जो हमारा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? iOS। तो इस iOS को देखते हैं कि वेदर इट सपोर्ट्स सिक्योरिटी और नॉट। तो हम दोबारा इसके लिए हम दोबारा इस लैपटॉप पे जाते हैं और यहां पे कमांड देते हैं शो। भाई जी, यहाँ पे कमांड देते हैं शो वर्जन। शो वर्जन, क्या कमांड देते हैं? शो वर्जन। शो वर्जन से दो बातें समझ आ जाएंगी। एक तो ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरे इसमें कौन सा इमेज है। मेरे लाजमी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज ये पड़ा हुआ है, जो कि ये है, और उसका वर्जन ये है। लेकिन याद रखो कि जहां पे इसके इमेज में K9 हो, इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करता है, लाइसेंस अवेलेबल है फॉर सिक्योरिटी। और अगर K9 नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी को सपोर्ट, इसका मतलब ये SSH को सपोर्ट नहीं कर। कुछ बात समझ आ रही? ये K9 is a symbol which represents that this image supports security। ठीक है। आमनो इकरा, ये इमेज कहां पड़ा हुआ है? ये इमेज फाइल जहां से ये उठाता है, कहां पड़ी हुई है? डू यू हैव एन आइडिया? तो दो तीन जवाब आ गए। जी, यही तो मैंने अभी जवाब दिया है कि मैं इसके वर्जन को जाके चेक करूंगा और उसमें जो इमेज फाइल है उसको चेक करूंगा कि ये इसमें अगर K9 है तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, और अगर नहीं है तो कहूंगा नहीं करता, बात खत्म। जनाब, गुड। ये बड़ा वैग जवाब होगा इसके स्विच में। ठीक है। एग्जैक्ट जगह लोकेशन बतानी है कि कहाँ पड़ा हुआ है। मिसाल तो मैं कहूँगा जी मेरे कंप्यूटर में फलानी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो आप कहीं कंप्यूटर में है, नहीं, आपको बताना होगा कि ये फलानी ड्राइव में है। तो ये इन्होंने सही बताया, रिजवान ने और कमर ने, कि ये फ्लैश मेमोरी में है। किस मेमोरी में? फ्लैश में। जो नए लोग हैं उनके लिए बताता चलूं कि इनको मेमोरी कहने की बजाय मैं नॉर्मली, जी, कलर चेंज कर लेते हैं, काफी देर से ये यूज हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये तीन हमारे पास जगह है जहां पे चीजें स्टोर होती हैं। कौन कौन सी शायान? नंबर वन, रनिंग कन्फिग, रनिंग डैश कॉन्फिग। नंबर टू, एंड दैट इज वोलाटाइल, दैट इज योर, लाइक योर वोलाटाइल, दैट इज लाइक योर रैम। जैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर को बंद कर दूं, सब कुछ गया, रैम में जो कुछ था नथिंग इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज दी स्टार्टअप, स्टार्टअप डैश कन्फिग, स्टार्टअप डैश। अच्छा, एक और भी चीज भी इससे देख लें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहां से आपको ये भी नजर आएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। हमने ये दिया था शो वर्जन, तो ये पता चल रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर का नाम है iOS। तो एक और जवाब भी आया हुआ है, रनिंग कन्फिग, स्टार्टअप कन्फिग, फ्लैश, वेरी नाइस। तो स्पेशली जब मैं किसी का नाम लेता हूं तो वो रिस्पॉन्ड करे, की वजह यह है कि आप मेरे सामने नहीं है। बाज़ औक़ात बीइंग इंस्ट्रक्टर बाय द टीचर, मैं, आप मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं बता सकता हूं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं तो आई कांट सी यू,
तो आपके जवाब से मुझे पता चलता है कि वेदर यू आर ऑन द ट्रैक और आप लूज हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो इसलिए जब पूछूं, गलत जवाब दें, कोई बात नहीं। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे सवालों के जवाब दुरुस्त होंगे, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी इंटरेक्टिंग, और मुझे ये पता चलता जाएगा कि यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, मतलब हाउ मच पुश यू वांट फर्दर। तो हमें अभी तीन स्टूडेंट ने बताया कि जी एक रनिंग कॉन्फ़िग है जो कि वोलेटाइल है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है जो कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है उमर फारूक, उमर फारूक ने फिजिकल आना छोड़ दिया। तो एक हो गया नॉन वोलेटाइल रैम, एनवी रैम। तो ये नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब परमानेंट है। और तीसरा है फ्लैश, ये भी परमानेंट है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज जो होता है, यानी आईओएस का इमेज, वो फ्लैश में पड़ा होता है। तो इवन आप इसको यूं भी चेक कर सकते थे कि इस स्विच को, ओके नाइस, कि आप यहां पे स्विच पे जाके कमांड दे देते शो फ्लैश, तो फ्लैश, और इंटर कर देते। तो यहां पे भी आपको ये K9 नजर, शायान आपको K9 नजर आ रहा है। ये आपके स्विच का मॉडल है 2960। मैंने कहा था ना, आपके जिस स्विच पे काम कर रहे हैं उसका नाम है कैटलिस्ट 2960 सीरीज प्लस सीरीज स्विच, सिस्को का। तो ये आपको बता रहा है कि जनाब आपका इसके ऊपर 2960 के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसकी बिन फाइल है, इमेज फाइल है। लेकिन दिस K9 रिप्रेजेंट दैट कि इसमें सिक्योरिटी भी मौजूद है, यानी कि एसएसएच बन सकता। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, गुड। अब जनाब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, बल्कि दूसरा काम कह लेंगे, पहला काम तो हमने एसवीआई बनाया। इस स्विच को, क्योंकि मे बी मेरे पास, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 500 स्विचेस हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो सबका नाम स्विच होगा। इसका मतलब है कि एक घर में 10 लोग हैं तो सबका नाम जो है वो कामरान होगा। तो ये तो बात नहीं बनती। फिर हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और स्पेशली जब हम रिमोटली बात कर रहे हो, फिर तो बड़ा जरूरी है कि प्रॉपर नाम होना चाहिए। ऐसा ही है ना? यानी अगर कॉल आप किसी का फोन पे बात करेंगे, कौन बात कर रहे हो, कामरान, कौन से कामरान, जी वही कामरान, क्या कहेगा कौन सा कामरान। तो इसलिए सेकंड काम क्या है कि आप अपने स्विच को एक प्रॉपर नाम देंगे, जिसको हम कहते हैं होस्ट नेम। क्या कहते हैं? होस्ट नेम। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पे हम कमांड देंगे होस्ट नेम, आपकी मर्जी का होना चाहिए, मीनिंगफुल। लेकिन मैं यहाँ पे टू कीप इट सिंपल नाम रख देता हूं SW1, SW1। और आपने देखा जो ही मैंने ये कमांड दी, तो मेरे स्विच का नाम स्विच से चेंज होकर SW1 हो गया। आप दे देंगे SW_, सिस्को, ये सिस्को में लगा हुआ स्विच है, वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज योर चॉइस। पहला काम हो गया। दूसरा काम, यानी थर्ड काम कह लें, बल्कि अपने पास कौन लिख रहा है, ताकि मैं 1 2 3 में गलत ना हूं। मूसा लिख रहा है। तो मूसा, पहला काम हमने एसबीआई किया। दूसरा काम हमने ये चेक किया, बल्कि सबसे पहले ये चेक किया क्या ये सिक्योरिटी सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता। तो वो हमने शो वर्जन से भी किया, और हमने शो फ्लैश से भी किया। डज इट मेक सेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन? इसके बाद, क्या आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है या बोरिंग हो गया है? क्योंकि आज हमने थ्योरी को हाथ भी नहीं लगाया। आज हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, वो स्किल, एक स्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ख्याल है दानियाल, असद, काशान, इकरा? ओके जी। तो हमें मैसेज भेजा असद ने कि जी इट इज इंटरेस्टिंग, इट मीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग द स्किल्स, दैट्स ग्रेट। तो जनाब हमने पहला काम कर, दूसरा काम या तीसरा काम जो भी आप कह रहे हैं वो तो कर दिया हमने, इसका नाम बदल दिया।
अगला काम हम ये करेंगे कि हम ये स्विच, ये राउटर, जो भी ये डिवाइस है, लाजमी तौर पे किसी डोमेन का हिस्सा होगा, डोमेन का हिस्सा होगा। हम वो इसको बता देते हैं कि तुम किस डोमेन का हिस्सा हो। तो हम इसको कमांड देते हैं, आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम डोमेन नेम फॉर एग्जांपल सिस्को डॉट पीके, सिस्को डॉट, जैसे हमारा डोमेन क्या है, यूटी पिशावर डॉट ईडीयू डॉट पीके, यूटी पिशावर डॉट ईडीयू डॉट पीके। इस तरह एम साइंसेज का क्या है, एम साइंसेज डॉट ईडीयू डॉट पीके। दिख रहा, एनईडी का क्या है। तो लाजमी तौर पे ये स्विच या तो यूटी में है, या ये एम साइंसेज में है, या ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एनईडी में है। तो वट एवर इज द डोमेन नेम, राइट हियर। तो आपने इसको इंटर कर दिया, तो इसको डोमेन नेम भी पता चल गया, और एक मैसेज भी आ गया, sys डॉट एनईडी यूटी डॉट ईडीयू डॉट पीके। तो दैट इज दी इनके डोमेन का, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का डोमेन नेम। तो हमने वो दे दिया, हमने यहाँ जूम करे सिस्को डॉट पीके। तो दो काम, ये दोनों क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि इनसे की बनेगी, इनसे क्या बनेगी, की बनेगी, इसलिए ये दोनों जरूरी है। दूसरा एक काम ये हो गया, कौन सा नंबर हो गया शफीक, नंबर बताते चले जाओ। चौथा हो गया। पांचवा ये है कि अगर इसका इनेबल के ऊपर पासवर्ड नहीं है, इनेबल इसका प्रिविलेज मोड है, बाहर से कोई भी आएगा कुछ भी कर डालेगा, तो अनेबल को सिक्योर करना जरूरी है। अभी देखो मैं लिखता हूँ अनेबल अटैक करता हूँ और हैश आ जाता है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो बंदे को आप जस्ट उसने इन हुआ और पावर हासिल कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसके एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप पासवर्ड लगाते हो या सीक्रेट लगाते हो, आपकी मर्जी कि एनेबल सीक्रेट लगाते हो। दोनों में फर्क आपको पता है कि जब आप पासवर्ड लगाओगे तो वो नजर आएगा रनिंग कन्फिग में भी और स्टार्टअप कन्फिग में भी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लगाना चाहते हैं सीक्रेट, तो वो हैश की फॉर्मेट में सेव होगा। समझ आ गई। तो चलिए जी अगला स्टेप ये कर लेते हैं। हमने कहा इनेबल, इनेबल सीक्रेट, चलो सीक्रेट ले लेते हैं, सीक्रेट। और जो आप रखना चाहते हैं, तो हम ऐसा पासवर्ड कोई रखता नहीं, लेकिन हमने तो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमने इसका पासवर्ड क्या रख दिया, इसको अनेबल सीक्रेट, तो इसको इंटर कर देते हैं। अब देखें ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए यहां से हम करते हैं एंड, और एग्जिट करते हैं। देखिए जी हमने लिखा यहाँ पे एनेबल लिखेंगे, एनेबल लिखा, ये मुझे नहीं जाने दे रहा, स्विच क्या हो गया, जालिम हो गया, अब मुझे इंटर होने नहीं दे रहा। तो मैं अब यहाँ पे कहता हूं जी इसका गलत पासवर्ड देता हूं, नहीं जाने देता। सही पासवर्ड सिस्को है, सिस्को दिया तो मैं इंटर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप भी हो गया कि हमने इसको पासवर्ड भी लगा दिया एनेबल के ऊपर। अब हम ये हमें स्विच नहीं कह सकता कि भाई अनसिक्योर को हम कैसे रिमोटली आने की इजाजत दें। अब हम आते हैं जी इसकी की क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वो की जिसके जरिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगी। और इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कौन सा पासवर्ड इस्तेमाल होगा, आरएसए। कौन सा, आरएसए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, दोबारा जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, इंटर करते हैं और कमांड देंगे क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट, यानी साइफर के लिए, क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए एक की जनरेट कर दो हमें, जो कि एसएसएच इस्तेमाल करेगा, एसएसएच के दौरान इस्तेमाल होगा। इंटर करते हैं
अच्छा, पूरा कमांड लिख देते हैं, क्रिप्टो। हाँ, अगर आपको कमांड याद ना हो, जैसे अब मुझे याद नहीं है, रिज्यूम करें की जनरेट, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जी कौन सा प्रोटोकॉल ये करता है यूज, RSA। तो मैं यहां दे दूंगा RSA। अब मैं इंटर कर सकता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहता है कि की लेंथ कितनी रखना चाहते हो। कहता है 360 से लेके 4096 तक रख सकते हो। कितनी की का लेंथ रख सकते हो, कितने बिट्स, इतने बिट्स। लेकिन याद रखो कि अगर की छोटी रखोगे तो टूटने का खतरा है, और अगर बहुत बड़ी रखोगे तो उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यू नीड टू गो इनटू ए कंप्रोमाइज। नंबर टू नंबर टू, एसएसएच के वर्जन हैं, जैसे वर्जन 1 और वर्जन 2। अगर आप छोटी की रखेंगे तो एसएसएच वर्जन 2 नहीं काम करेगा, सलामकुम। वर्जन 1 काम करेगा। बहुत कल लगाओ सुनो, पास पे आओ। ठीक है? जी। तो हम कहते हैं कि अगर कुछ नहीं दोगे तो मैं खुद ही 512 बिट्स की आपके लिए बना दूंगा। तो हम कहते हैं नहीं जी, हमने एसएसएल वर्जन 2 पे जाना है, क्योंकि वर्जन 1 के बाद तो 2 आया, तो इसका मतलब 1 में बग है, लेटेस्ट में जाना चाहिए ना। तो हम इसको कह देते हैं जी, मिसाल के तौर पे कि मेरे लिए की बना दो, कितने की, 1024 बिट्स की। तो इसने मुझे कहा कि जी की जनरेटिंग 1024 बिट RSA की। लेकिन साथ ही कह रहा है की विल नॉट बी एक्सपोर्टेबल, यानी कि की बना ली है, ये की आप उठा यहां से एक्सपोर्ट करके किसी और को दे नहीं। नहीं, दिस विल बी यूज ओनली ऑन दिस स्विच। ये इस स्विच की जाती की है। कुछ बात समझ आ रही है? तो हमने की बना दी। ठीक। अब मैं यहां से एक और चीज भी देखना चाहता हूं। कमांड दे मैं यहां से करता हूं एग्जिट, क्योंकि शो की कमांड जब भी याद रखो देनी हो गई तो प्रिविलेज मोड में देंगे। तो हम इसे कमांड देते हैं शो IPSSH। बस, क्या बात है। शो IPSSH। तो ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि जी आप वर्जन 1 पे हो, और ऑथेंटिकेशन का टाइम आपका कितना है, टाइम आउट 120 सेकेंड्स, यानी 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट में किसी डिवाइस के साथ एसएसएच करूं, यानी उस पर लॉग इन करूं, और 2 मिनट तक मैं उसको इस्तेमाल ना करूं, तो मुझे लॉग आउट करवा दिया जाएगा। और नंबर 2, अगर मैं 3 दफा गलत पासवर्ड दूं तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मुझे बस 3 दफा पासवर्ड की ऑप्शन दी जाएगी। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ और ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा ये काम नहीं है। मुझे तो डर ये है कि मैं 1 पे हूँ। मैं किस पे हूँ? 1 पे। मुझे किस पे जाना है? 2 पे जाना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गया, और इसको देता हूं कमांड IPSSH वर्जन 2। क्या कमांड दी? देख रहे हैं, अगर मैं 2 को छोड़ दूं और क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो कहता है 1 भी दे सकते हो और 2 भी। तो 1 में तो ऑलरेडी है, वो तो देने की तुक नहीं बनती। तो मैं इसको कहता हूं 2। मैंने क्या कमांड दी? IPSSH वर्जन 2। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा यहां से एग्जिट करके देखता हूं कि हुआ भी कि नहीं हुआ। तो शो IPSSH इंटर किया। अब देखें आ रहा है वर्जन SSH एनेबल भी हो गया और वर्जन 2 एनेबल हो गया। क्लियर है? नाइस। नहीं है क्लियर तो बात करें। तो हमने ये काम भी कर लिया। नाइस। अब बाहर से कोई आएगा, चाहे मैंने कहा कि अपने घर से आए, चाहे दूसरे शहर से आए, तो मुझे इस स्विच के ऊपर कुछ वर्चुअल
टर्मिनल्स बनाने हैं, जो कि मैक्सिमम 16 बन सकते हैं। इसका मतलब है कि 16 लोग एट ए टाइम एसएसएच करके स्विच के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन क्या मैं 16 को इजाजत देना चाहता हूं? मेरी मर्जी। तो इसके लिए मैं इसको कमांड दूंगा दोबारा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और मैं इसको कहूंगा कि जनाब आईपी लाइन वीटीवाई वर्चुअल टर्मिनल। और अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क फिर लगाऊं तो ये कहता है कि देखें कितने, 0 to 15। ठीक है। तो इसके मतलब 0 to 15 टोटल कितने होंगे? 16। जैसे मैंने कहा, आपकी मर्जी है, आप 16 के 16 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दे दें 0 15, 0 15। लेकिन अगर आप कम देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 5 देना चाहते हैं, कि एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग इस पे लॉग इन ना हो सके, तो हमने दे दिया लाइन VTY 04। और आप देख सकते हैं कि अब मेरी कॉन्फ़िग तब्दील हो गया, कॉन्फ़िग डैश लाइन हो गया है। इसका मतलब अब मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो कहाँ, किस में, किसको कॉन्फ़िगर करेंगी? वर्चुअल टर्मिनल को, VTY को। किसको करेंगी? VTY को। ठीक है जी, ऑनलाइन। ये क्वेश्चन है लेकिन मैं पूछूंगा। आमिना पूछ रही है, सर प्लीज रिपीट हाउ वी चेक कंपेटेबिलिटी इन द शो फ्लैश। अभी बता देते हैं जी, अभी बता देते हैं आमिना। तो आमिना, हमने कहा कि मैं यहां से करता हूं एंड, मैं दोबारा यहां पे आ जाऊंगा, मसला नहीं। या पहले ये कर लेने दें, फिर आपको आखिर में करके बताता हूँ। डू रिमेंबर योर क्वेश्चन, उसको भूलना नहीं है। तो जी कैसे मालूम करेंगे कि ये कंपेटेबल है फॉर एसएसएच या नहीं है, यानी सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है या नहीं है? ओके। तो जनाब इस वक्त मैं किस पे मौजूद हूं? सर आरएसए का के के दोबारा बता दें। ओके। तो मैंने यहां पे ये कमांड दी कि जब मैंने इसको कमांड दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये सारी कमांडें लिखी जा रही हैं, मैं आपको बताता हूं अभी। अगर मैं आप ये मैंने जी की कमांड दी, मैंने इसको कमांड दी क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। तो मैंने कहा ना इसमें दो चीजें इस्तेमाल होगी की में, एक इस डिवाइस का नाम और एक इस डिवाइस का डोमेन नेम। इन दोनों से मिलके आरएसए की बनी। अब जब मैंने इसको कहा आरएसए, तो इसने मुझे कहा कि भाई कितने बिट का मैं की बनाऊं। ये कहता है मिनिमम 360 बिट्स हैं और ज्यादा से ज्यादा 4096 है। लेकिन मैंने बताया कि अगर मैं इसको 360 पे करूं तो फिर वर्जन 1 पे रहना पड़ेगा। लेकिन दोनों के मैंने आपको प्रॉस एंड कॉन बताए कि अगर की छोटी है तो क्रैक होने का खतरा है, अगर बड़ी है तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यू हैव टू टेक ए ब्रिलियंट डिसीजन। तो मैंने कहा जी मैं 1024 की तरह के साथ चला जाता हूं। तो उसने मेरे लिए एक की बना दी। कहता है मैंने आपके लिए एक की बना दी है आरएसए के जरिए, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसका जवाब मिल गया। ओके जनाब। तो अब मैंने इसको कह दिया कि जी लाइन VTY 5 क्रिएट कर दो। अब मैं इसको बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करो। क्या है? ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट इनपुट। तो क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो देखिए कहता है ऑल। ऑल का मतलब है जितने भी प्रोटोकॉल हैं ट्रांसपोर्ट के लिए पॉसिबल हैं, लॉगिन के लिए, रिमोट लॉगिन के लिए पॉसिबल है सब। अगर आप कहते हैं नन, इसका मतलब कोई भी प्रोटोकॉल से नहीं, कोई नहीं आ सकता, किसी को इजाजत नहीं है। और अगर आप इसको कहते हैं एसएसएच, तो सिर्फ एसएसएच के जरिए कनेक्टिविटी होगी। अगर आप इसको कहते हैं टेलनेट, तो सिर्फ टेलनेट से कनेक्टिविटी होगी। जी। ऑल का मतलब है सब, यानी एसएसएच भी और टेलनेट भी। कोई टेलनेट से आए तो उसको भी इजाजत दो, जो एसएसएच से आए उसको भी इजाजत दो। क्लियर हो गया? ओके चलो। तो आपके क्योंकि एसएसएच के लिए काम कर रहे हैं,
क्योंकि आपने की जनरेट की हुई है, तो आपका ख्वाहिश ये होगी कि एसएसएच इंटर कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका एसएसएच की इजाजत मिल गई, एसएसएच की इजाजत मिल गई। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? फिर ये पासवर्ड, अभी आपसे पासवर्ड पूछेगा, पूछना चाहिए, हम बनाते हैं, वो कहां पड़ा हुआ है? ताकि तौर पे आप यूजर नेम पासवर्ड लिख के अंदर आएंगे, वो कहां पड़ा है? तो दो जगहों पे पड़ा हो सकता है, या तो उसी स्विच के ऊपर पड़ा है, और या एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर पड़ा है जिसको ट्रिपल ए सर्वर कहते हैं। लेकिन हम ट्रिपल ए सर्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं, लोकल स्विच पे कर रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे कि जी आपने लॉग इन करना है, तो लॉग इन लोकल करो, लॉग इन लोकल करो। क्लियर? लॉग इन लोकल आपको मिलेगा, लोकली आपको यूजर नेम पासवर्ड अपने पास संभालना है, वहीं से आपने अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना है कि वैलिड यूजर है कि नहीं है। और जब कर लिया तो यहां से कर जो एग्जिट, यहां से कर जो एग्जिट। अब एग्जिट करने के बाद यूजर तो बना ही नहीं, एक यूजर बना लेते हैं। तो कमांड देंगे इसको यूजर नेम, यूजर नेम, मिसाल के तौर पे एहसान, मिसाल के तौर पे एहसान। और उसका पासवर्ड क्या है एहसान साहब का? लेट करो हक, जो आप रखना चाहते हो। तो ये यूजर भी हमने क्रिएट कर लिया, कर लिया। और एक क्वेश्चन भी आ गया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लॉग इन लोकल ए बिट मोर? ओके, देखिए, अब तो और भी आसानी से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए, मैंने एक यूजर बनाया जिसका यूजर नेम है एहसान, और उसका पासवर्ड है हक। यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। अब ये दोनों कहाँ पे स्टोर है? ये मैंने कहाँ पे क्रिएट की है? ये मैंने स्विच के ऊपर ही की है। इसका मतलब है कि जब भी मैं इसको कहूंगा कि मैं एसएसएच के जरिए लॉगिन होना चाहता हूं, तो ये मुझसे यूजर नेम पूछेगा, मैं यूजर नेम दे देता हूँ एहसान। ये कहाँ पे चेक करे? तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि लोकल तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है, अपने लोकल डेटाबेस में जाके चेक कर लो। फिर मैं इसको पासवर्ड देता हूँ हक, तो ये कहाँ पे चेक करे? लोकली तुम्हें तुम्हें मौजूद दिया गया हुआ है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइजेस में, एक अलग सर्वर बनता है जिसको कहते हैं ट्रिपल ए सर्वर, जिसको रेडियस भी कहते हैं। वहां पे रखा जाता है, फिर उसको बताया जाएगा कि लॉग इन लोकल नहीं, लॉग इन ट्रिपल ए। फिर उसका एड्रेस देना होगा, लेकिन हमारे केस में जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें जो अभी तक हमने की हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब समझ आ गए जिसका भी क्वेश्चन था? रिश्वान का था। अंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट। तो जनाब, ये सारी चीजें कहाँ पे सेव हुई? ये सारी चीजें कहाँ पे सेव हो गई हैं? ये स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो गई हैं। तो अगर मैं यहां से एग्जिट करके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने की है वो यहाँ सेव हो गई हैं। मिसाल के तौर पे, क्या मैंने होस्ट नेम क्रिएट चेंज किया? जी बिल्कुल किया। किया, पहले स्विच था ना नाम, अब स्विच है नहीं, SSW1 है। मैंने एनेबल के ऊपर एक पासवर्ड लगाया जो कि सिस्को है, लेकिन यहां सिस्को नजर नहीं आ रहा, उसकी हैश वैल्यू नजर आ रही है। नेक्स्ट, मैंने इसको बताया कि तुमने कौन सा एसएसएच का वर्जन यूज करना है, वर्जन 2। फिर मैंने इसको कहा कि तुम्हारा डोमेन नेम क्या है, cisco.pk। मैंने एक यूजर क्रिएट किया एहसान, जिसका पासवर्ड है हक। फिर मैंने फिर मैंने इन इंटरफेसेस के साथ कुछ काम नहीं किया जो कि कर सकता था, नहीं किया। देख लें, 18 19 20 21 22 23 24 कुछ भी नहीं किया। गीगाबिट पोर्ट के साथ भी नहीं किया। हाँ, मैंने VLAN 1 को एक आईपी दिया, VLAN 1 को एक आईपी दिया और सबनेट मास्क दिया। फिर मैंने यहाँ पे
लाइन कंसोल पे कोई काम नहीं किया, लेकिन VTY को 5 अलाउ किए और कहा कि जी लॉग इन करे कोई तो लोकली करेगा, लोकल तुम्हारे पास है, और SSH करो। SSH की इजाजत दे दी और ये सारे काम मैंने कर लिए। अब साथ साथ ये अच्छी आदत है कि हम इसको, अगर मैं यहां करूं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो कहता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो है ही नहीं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब गलती गलती से ये स्विच ऑफ हो गया, तो मेरी सारी एफर्ट खत्म हो गई, मेरी सारी एफर्ट, क्योंकि अभी ये सारा कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, वोलेटाइल मेमोरी में। तो चाहिए कि मैं इसको नॉन वोलेटाइल में ले आऊं, तो उसकी कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड देन स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग। तो जो ही मैंने ये इंटर किया, वो कहता है इसी नाम से कर दूं। मैंने कहा जी कर दो। इसने कहा जी मैंने कर दिया। अब अगर मैं इसको कमांड दूं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन में वही चीजें आ गई जो रनिंग में थी। अब अगर ये स्विच ऑफ भी हो जाए, रीलोड भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी मेरी बात जी? जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है। जी बिल्कुल, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है इसको सेव करने का, इसको सेव करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, और वो है WR। WR करके इंटर करो, ये सेव कर दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम वगैरह दें तो वहां पे WR मत लिखें, पूरी कमांड लिखें। तो ये तो हो गया जनाब, हमने, इसका मतलब है कि इस पे SSH कॉन्फ़िगर कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। ओके, अब हम इस पीसी को भी आईपी दे देते हैं जो कि है 1.10, या इसको भी दे देते हैं 1.2। देख लें जी, डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, कोई आईपी नहीं है, तो एज पर दी दिस डायग्राम हम इसको आईपी दे देते हैं 192.168.1.2, और इसको आईपी, इसको नेट मास्क दे देते हैं, सबनेट मास्क दे देते हैं 255.255.255.0, और इंटर कर देते हैं। तो अब अगर मैं इस पे रखूं, तो आपको नजर आ रहा है कि इसको आईपी मिल गया 192.168.1.2। इसी तरह अगर मैं इसको भी आईपी दे दूं 1.10, अभी तक रखूं, तो देखें आ रहा है नो आईपी, इथरनेट इंटरफेस जीरो, आईपी एड्रेस नॉट सेट। तो मैं इसको भी उसी तरह, इसके भी डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और इसको आईपी दे देता हूँ 192.168.1.10, और सबनेट मास्क दे देता हूँ 255.255.255.0, और इसको भी आईपी मिल गया। इस पे भी रख के जस्ट आपको बता सकता हूँ कि इसको आईपी मिला हुआ है। लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि रियल स्विच के ऊपर कोई माउस रख के ये चीजें नहीं मिलती। रियल स्विच पे तरीका ये होगा चेक करने का कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और इसको कमांड देंगे आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग। जो ही आपने आईपी कॉन्फ़िग किया, तो देखें आपको नजर आ रहा है कि आपने इसको IP4 एड्रेस असाइन कर दिया है, और सबनेट मास्क भी असाइन कर दिया। क्लियर होगी मेरी बात? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं इस पीसी के पास, और इसको कहता हूं कि जनाब तुम्हारे पास एक SSH टर्मिनल है, वो मुझे दिखा दो। ये लिखा नजर आ रहा है, इट इज लाइक द पुटी, इट इज लाइक दी पुटी। पुटी में भी नजर आता ना सीरियल, टेलनेट, SSH। तो मैंने यहाँ पे ये किया। कहते हैं किस होस्ट से कनेक्ट होना चाहते हो? मैं ऐसे कह रहा हूं कि 1.1 से कनेक्ट होना चाहता हूं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 192.168.1.1। और यूजर, किस यूजर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं? कौन सा यूजर हमने क्रिएट किया? लोकल एहसान। हम इसको कहते हैं कनेक्ट हो जाओ। कहता है पासवर्ड तो बताओ। बगैर पासवर्ड के मैं नहीं छोड़ता, चालाक हो गया है। तो जनाब इसको हम पासवर्ड दे देते हैं हाथ। जी मैंने पासवर्ड दिया, मैं कहाँ पहुंच गया? मैं स्विच पे आ गया, बैठा मैं पीसी जीरो पे हुआ हूं, लेकिन मैं पहुंच गया हूं इस जगह पे। अब देखिए मैं यहाँ पे एनेबल करता हूं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड के बगैर अंदर नहीं जाने दे रहा। मैं इसको देता हूँ सिस्को
तो दिया तो उसने मुझे अंदर का जाने की इजाजत दे दी। मैं इसको कहता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे वो सारी चीजें जो कि इस लैपटॉप के जरिए मिल रही थी, इस कंसोल केबल के जरिए मिल रही थी, माशाल्लाह वो मुझे डायरेक्टली इस डिवाइस से मिल रही हैं, इस मैनेजमेंट पीसी से मिल रही हैं, इस एडमिन पीसी से मिल रही हैं। क्लियर है मेरी बात? आप कहेंगे भाई ये तो स्विच इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। शायान कह रहा है कि ये तो, शायान दिल में कह रहा है कि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए मिल गया। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं इसके यहां से करता हूँ एग्जिट। मैं करता हूं यहां से एग्जिट। एग्जिट कर दिया। कहता है द करंट सेशन इज क्लोज, डू यू वांट टू रीएस्टैब्लिश ए न्यू सेशन विद द प्रीवियस सेशन ऑप्शन। मैं कहता हूं नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं इस पीसी के पास चला जाता हूं जो कि कहीं और लगा हुआ है, किसी और बिल्डिंग में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसको खोला और इसके भी टेलनेट और इस पे आया। यहां पर भी मैं वही आईपी देता हूं विच इज 192.168.1.1। और यूजर का नाम देता हूं कि जी एहसान यूजर के साथ इसको इन कर दो। कनेक्ट। अगेन पासवर्ड मांग रहा है। इसको पासवर्ड देता हूं, हाँ। ये मुझे इंटर करा दिया। इसका मतलब है कि ये कोई मखसूस पीसी नहीं है जिससे मैंने कनेक्ट होना है। जहां भी एसएसएच क्लाइंट है मैं वहां से कनेक्ट हो सकता हूं। अब मैं एक दफा हो चुका हूं, मैं इस पीसी से भी होता हूं क्योंकि मैंने 5 की इजाजत दी हुई है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। क्या लाजमी है कि मेरे पास पुटी हो? अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन बाज लोग कहते हैं नहीं, हमें कमांड प्रॉम्प्ट से इंटर होना है। ठीक है, तो इसकी क्या कमांड है? SSH -L, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एहसान @ पीसी का आईपी क्या है? 192.168.1.1। SSH-L, यूजर नेम मशीन नेम, मशीन एड्रेस। इंटर करता हूं। नहीं। तो मैं इस कमांड को यहां से कॉपी करके यहां पे देख लेता हूं कि कमांड एग्जैक्ट क्या है। शायद कैपिटल है ना। दोबारा करते हैं। हम्म, यहाँ पे SSH, सॉरी, SSH कर डैश, आई एम श्योर छोटा एल नहीं था, कैपिटल एल नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ। यूजर इज एहसान एंड @ और उसका IHSAN @192.168.1.1। गलत कमांड। ये दो हमें यहाँ से शायद कुछ मिल रहा है। हम्म, हम्म, तो मेरा कह तो रही हो लेकिन मेरे ख्याल से @ आता है। ऐसे एडमिन @ नहीं, विंडोज जो है वो, ये जो कमांड है लिनक्स पे चलती है। रिशवान।
तो मैंने क्या कमांड दी, यही नहीं दी ये सवेरा। हम्म, अच्छा आप कहते हैं एल ना लगाओ। मेरे ख्याल से इसके बगैर ये नहीं करता, SSH। चले एहसान @192.168.1.1, नहीं, -L ही था, -L ही था। इस तरह जो है डेट इज इन दी, दोबारा मैं लिखता हूँ SSH -L एंड यूजर एहसान @192.168.1.1। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये मैं हेल्प में देता हूँ, Ctrl+G। @ नहीं लगाया, इसके बगैर किया अभी। एल लगाए। अच्छा, तो आपने, सॉरी इसका नहीं, तो हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि आप कमांड को यूं चेंज कर दें कि दोबारा ये कमांड दें लेकिन @ ना इस्तेमाल करें, और यूं दें। नहीं, चले मैं इसको एल लगाना है, सॉरी। हाँ, एल तो लगाना ही लगाना है, मुझे याद है, ये मुझे पहले भी एक दफा -L। ये हाँ जी, पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड क्या है, हक, हक दिया तो देखें मैं दोबारा इस पे लॉग इन कर गया। तो द एग्जैक्ट कमांड इज फॉर विंडोज SSH-L यूजर नेम एंड पासवर्ड। लिनक्स में है SSH एहसान यानी यूजर नेम @पासवर्ड नेम एड्रेस। पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, आपने यूजर नेम और वो क्रिएट किए। मैं आता हूं आपके पास। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा कि अब मुझे इस केबल की जरूरत, इस केबल की जरूरत खत्म हो गई। आई डोंट नीड द कंसोल केबल। आई नोट डोंट नीड टू गो इनटू द विसिनिटी ऑफ द डिवाइस। मैं जहां मर्जी बैठा हूं, चाहे अपने घर में हूं, आई कैन कनेक्ट। कुछ बात समझ आ रही है? तो आज का हमारा स्टेप ये था। और जो हमारा एक स्टूडेंट, क्या नाम है इसका, हमारे स्टूडेंट का नाम है, जिसने कल, ये जी, मोहम्मद हबीब। आज तो मुझे मोहम्मद हबीब क्लास में नजर नहीं आया। तो मोहम्मद हबीब, हम चैप्टर 2 या मॉड्यूल 2 का काम साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो यूं हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है, इस तरह हमारा चैप्टर 2 भी तकरीबन कंप्लीट है। हम चैप्टर 3 पे हमने कल स्टार्ट ले लिया। लेकिन मैंने इसलिए ये कराया कि हम देखना चाहेंगे जो भी ये लेयर्स हैं, क्योंकि हमने कहा था हम लेयर पढ़ना चाहते हैं। हम लेयर को, मैंने कल भी क्लास में कहा था कि हम दो तरह से देखना चाहते हैं, एक सिमुलेशन में बाय यूजिंग पैकेट ट्रेसर, और सेकेंडली हम इसको यूज करेंगे बाय शॉक। और उधर हम रियल टाइम ट्रैफिक को पकड़ के हमें देखना चाहेंगे लेयर हैं या नहीं, हेडर है या नहीं, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। तो ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू इन्वेस्टिगेट। तो मुझे दो सवाल हैं, डोंट यूज दिस, ओके सर, शो फ्लैश कमांड, हाँ जी। अब मैं आपके सवाल के तरफ आ रहा हूं आमना। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी से कनेक्टेड हूं, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं एनेबल। और ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है जो कि है सिस्को। तो मैं यहां आ गया। अब दो तरीके ये हैं कि एक तरीका तो ये है कि मैं शो वर्जन करूं, और शो वर्जन जब करूं तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि जनाब जो मेरे इमेज का नाम है उसमें K9 है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी को मानता है, सिक्योरिटी को मानता है। और इसके यहां पर भी अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी के बारे में कोई बात करता है, लेकिन एनी हाउ, दूसरा तरीका जो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो है कि मैं शो फ्लैश करूं। और शो फ्लैश करूं तो फिर मैं इसके नाम में देखूं कि इसके नाम में K9 है या नहीं है।
तो आमना मैंने देखा कि इसमें K9 तो है, जैसे यहाँ पे K9 था, यहाँ भी K9 है। ये वही नाम रिपीट हो रहा है, लैन बेस K9, ये इसमें मौजूद है। तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें सिक्योरिटी का लाइसेंस एनेबल्ड है। तो ये हो गया आमना का सवाल। ओके नाइस। अब बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या कोई बात समझ आई या कोई चीज मुश्किल है? जी हारिस, काशांत, इकरा, इकरा कैसा लग रहा है? एक नई इन्वायरमेंट है डेफिनेटली। आपने कभी भी हमारी यूनिवर्सिटी से या हमारे किसी इंस्ट्रक्टर से नहीं पढ़ा हुआ। हाउ यू फील? इज इट इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव और बोरिंग? लॉट ऑफ मैसेजेस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सर VTY से हम नंबर ऑफ यूजर डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि कितने यूजर एक वक्त में लॉग इन कर सकते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी 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 वेल सर। यस सर, फुल समझ आ गई, दैट्स ग्रेट। सर अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट्स नाइस। चलिए जी, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको ये लेक्चर हम इंशाल्लाह एज क्विकली एज पॉसिबल प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर आप इसको साथ साथ सुन के और साथ साथ प्रैक्टिस करके जो कुछ भी आज हमने सीखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। यस सर, आउट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे, टिल देन अल्लाह हाफिज।